Bismillahirrahmanirrahim. Types types of matrices. First type of matrix is row matrix. A matrix having one row. One row is called row matrix. For example, if we have a matrix, अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स A है, टू -1 7, then A is called row matrix because it has only one row. Next, and the order of A is 1/3. Row must be 1. Columns may be different, but row must be 1. Then it is called row matrix. And second, column matrix. A matrix having only one column. For example, we have a matrix B 2 7 5. So this matrix B has only one column. The order of this matrix is 3/1. The column must be 1. So this is called a row matrix. This is called a column matrix because it has only one column. Column matrix. Column matrix. Column matrix. Next, rectangular matrix. Rectangular matrix. If the number of rows of a matrix is not equal to number of column, then it is called rectangular matrix. If the number of rows of a matrix is not equal to number of column, then it is called rectangular matrix. Then it is called rectangular matrix. For example, let's suppose we have a matrix A with entries 1 to 1 1
and 2 3. Now matrix A have 3 rows, first, second and third, R1, R2, R3, but it has only 2 columns, C1 and C2. So number of rows are not equal to number of columns. That is why A is called rectangular matrix. Rectangular matrix. Reason: number of rows of A is not equal to number of columns of A. Next, square matrix. If the number of rows and number of columns of a matrix are equal, then it is known as square matrix. Examples: let's suppose we have a matrix A, 2 minus 1 and 0 3. Suppose another B matrix, 1 2 3 minus 1 0 minus 2 0 1 3. So both matrices A and B have same number of rows and columns. So this matrix A has 2 rows and 2 columns. B matrix has 3 rows and 3 columns. So number of rows and number of columns are equal. Therefore A, B are called square matrix. Therefore A and B are called square matrix. Next, number 5, null matrix. If a matrix have all the entries equal to 0, then it is known as null matrix. A matrix having all entries equal to 0, then it is called null matrix. It is known as null matrix. For example, zero zero 0 0. It can also have the form 0 0. It may have form 0 0. So 0 0 0 0. So these all are example of null matrix because these all have all the entries equal to 0. तो आज का लेक्चर यहाँ तक कि इंशाअल्लाह बाकी जो टाइप्स हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे. अल्लाह हाफिज़. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स.
So this is the sixth type, transpose of a matrix. If we change the rows into columns and columns are columns into rows, the matrix obtained after changing rows into column or column into rows is known as transpose of a matrix. The obtained matrix is called transpose of that matrix. Transpose of that matrix. अब हम इसको एग्जाम्पल के ज़रिए बेहतर तरीके से समझते हैं. Suppose we have a matrix A (1, 2, 3) 2, 1, 0, -1, 4, -2. Now we will take the transpose of A implies. अच्छा, ट्रांसपोज के लिए हम A के ऊपर T डालेंगे, T फॉर ट्रांसपोज. तो A में जो रोज़ हैं इनको हम कॉलम में चेंज कर दें. तीनों रोज़ को तीनों कॉलम में ले जाएं या तीनों कॉलम को रोज़ में ले जाएं. तो जो मैट्रिक्स हमें हासिल होगा वो A का ट्रांसपोज कहलाएगा. चलिए हम रोज़ को कॉलम में लिखते हैं. दिस वन इज़ द फर्स्ट रो, 1, 2, 3. अब हम इसको कॉलम में लिखेंगे 1, 2, 3. सिमिलरली जो सेकंड रो है 2, 1, 0, इसको सेकंड कॉलम में लिखेंगे 2, 1, 0. इसी तरह जो थर्ड रो है उसको थर्ड कॉलम में लिखेंगे -1, 4, -2. तो AT जो है वो A का क्या है, ट्रांसपोज है, क्योंकि हमने नंबर ऑफ रोज़ को कॉलम में चेंज कर दिया है. टेक अनदर एग्जांपल. लेट सपोज वी हैव अ मैट्रिक्स B with entries 1, 0, 2, 2, -1, 3. अच्छा, इस दफ़ा हम कॉलम्स को रोज़ में लिखते हैं. फर्स्ट कॉलम को जिसमें एंट्रीज़ हैं 1, 2, उसको फर्स्ट रो में लिखते हैं. तो ये आ जाएगा 1, 2. सेकंड कॉलम में 0, -1 है तो इसको सेकंड रो में लिखेंगे 0, -1. थर्ड कॉलम में 2, 3 है तो इसे थर्ड रो में लिखेंगे 2, 3. तो इस तरह से जो मैट्रिक्स हमें मिला है ये पहले वाले मैट्रिक्स का क्या, ट्रांसपोज है. उम्मीद है जी आपको समझ आ गई होगी. ट्रांसपोज बहुत सिंपल है. नेक्स्ट जो टाइप है वो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स. सिमेट्रिक, सेवंथ टाइप. सिमेट्रिक, सी आता है एक्स.
सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अच्छा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स में हमने जो भी मैट्रिक्स लेना है वो स्क्वायर मैट्रिक्स लेना है। स्क्वायर मैट्रिक्स के अलावा हम कोई मैट्रिक्स नहीं ले सकते, अदरवाइज़ हमें सिमेट्रिक मैट्रिक्स हासिल नहीं होगा। तो स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स is symmetric if it is equal to its transpose, equal to its transpose, यानी कि आपने कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स सपोज किया, उसका आपने ट्रांसपोज लिया, लेकिन ट्रांसपोज के बाद उस मैट्रिक्स में कोई फ़र्क नहीं पड़ा, वो दोबारा ए मैट्रिक्स आ गया। तो इस तरह ट्रांसपोज लेने पर जो मैट्रिक्स हमें हासिल होगा उसको हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। अब एग्ज़ाम्पल से चेक करते हैं मज़ीद। एग्ज़ाम्पल लेते हैं इसकी। लेट्स सपोज ये मैट्रिक्स एम with entries 1 2 3 2 minus 1 4 and 3 4 0। तो m का हम लेंगे ट्रांसपोज। तो फर्स्ट चलें हम रोज़ को कॉलम में चेंज करते हैं। आप कॉलम को रो में भी चेंज कर सकते हैं। तो फर्स्ट रो में एलिमेंट्स हैं 1 2 3, तो इसको हम कॉलम में लिखेंगे 1 2 3। सेकेंड रो में 2 minus 1 4, तो 2 minus 1 4 सेकेंड कॉलम में आ गया। थर्ड रो में 3 4 0, तो यहाँ पर थर्ड कॉलम में 3 4 0। अभी हमने कॉलम्स रोज़ को कॉलम में चेंज किया, लेकिन अब चेक करें कि एम की जो एंट्रीज़ हैं और एम टी यानी कि ट्रांसपोज ऑफ एम की जो एंट्रीज़ हैं वो सेम है। सो ये दोबारा जो है एम के इक्वल आ गया आफ्टर टेकिंग ट्रांसपोज। तो इस तरह से जो मैट्रिक्स हमें हासिल होगा उसको क्या कहेंगे? सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। एट्थ टाइप स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसमें भी आपने स्क्वायर मैट्रिक्स लेना है। स्क्वायर मैट्रिक्स A is said to be skew symmetric if ट्रांसपोज ऑफ ए इज़ इक्वल टू माइनस ए। एग्ज़ाम्पल से आपको ये सही समझ आ जाएगी, यानी कि आपने ट्रांसपोज लिया, दोबारा वो मैट्रिक्स माइनस साइन के साथ रिपीट हो गया, तो फिर ये कहलाएगा स्क्यू सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में ओनली ए आता था, इसमें माइनस का इजाफा है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल let's suppose you have a matrix A 2 0 2 3 minus 2 0 1 minus 3 minus 1 0। ट्रांसपोज लेते हैं। तो हम ऐसे करते हैं, तो कॉलम्स को हम रोज़ में चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पर हम कॉलम्स को रोज़ में चेंज कर देते हैं। सो फर्स्ट कॉलम में 0 -2 -3 है, तो इधर
फर्स्ट रो में आ जाएगा 0 -2 -3। इसी तरह सेकंड कॉलम में 2 0 -1। इसी तरह थर्ड कॉलम में 3 1 0। अब हमने इसको ए के इक्वल करना है, तो थोड़े से साइन डिफरेंट हैं। तो इस तरह करते हैं कि तीनों रोज़ को हम -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, या तीनों कॉलम्स को हम -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव साइन जो है वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएंगे और पॉजिटिव साइन नेगेटिव में। अलबत्ता ज़ीरो का कोई साइन नहीं है, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। तो -1 -1 -1, तो 0 2 3 -2 0 1 -3 -1 0। तो 3 साइन नेगेटिव हैं, इनसे मल्टीप्लाई होने पर एक बच जाएगा। और ये आप देखें, ये सेम मैट्रिक्स हमारे पास आ गया ए। तो A ट्रांसपोज इज इक्वल टू -A। तो यही हम चाहते थे, अगर इस तरह की शेप बन जाएगी ट्रांसपोज देने के बाद आपके पास -A आ जाए, यानी कि वही मैट्रिक्स विद नेगेटिव साइन रिपीट हो जाए, तो वो फिर मैट्रिक्स जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। मज़ीद जो टाइप्स रह गई हैं वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में क्लियर करेंगे। अल्लाह हाफिज़। अगर चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।